Today we will deal with the historical background of Indian polity and governance. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम लोग बात करें तो इस चैप्टर में, ठीक है, हम लोग टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के जितने भी एक्ट पास किए गए हैं उसकी जानकारी को स्टडी करेंगे, उसकी जानकारी को पढ़ेंगे, ठीक है। As you see on the screen slide, there are the two part of the historical background or the Constitutional Development Act. The first is company rule and second is crown rule, and a thin line between these two is the War of Independence, which is fought in 1857, first war of independence, Indian independence, 1857. देन कॉन्स्टिट्यूशनल इन द पॉलिटी सेक्शन हम लोग ज्यादातर हिस्टोरिकल चीजों पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे एक्ट जो पास किए गए थे उसकी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहला जो एक्ट था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पास किए गए, चार्टर एक्ट 1813 में पास किए गए, फिर चार्टर एक्ट आफ्टर 20 इयर्स 1833 में पास किए गए, फिर 20 इयर्स के बाद चार्टर एक्ट 1853 पास किए गए, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जस्ट आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पास्ड, विच इज द अंडर द क्राउन रूल, ठीक है। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट पास किए गए जो कि ऑलरेडी क्राउन रूल के अंतर्गत था। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 92 पास किए गए जो कि अगेन आपका क्राउन रूल के अंतर्गत था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो कि क्राउन रूल के अंतर्गत था। लखनऊ पैक्ट जो कि 1916 1916 में पास किए गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 दैट इज 1919, and then history between the 1927 to 32, then the government of India act 1935, then August offer 1940, Cripps proposals 1942, cabinet mission plan 1946, and then Indian independence act 1947. We deal with the regulating act 1773. What is regulating act 1773? Why it is passed? Regulating act 1773, why it is passed? What was the provision of regulating act 1773? Then what are the drawbacks of the regulating act 1773 which lead to pass the act further, which lead to pass the act further? The first is, what is regulating act 1773? There are the four major definition or introduction that what is regulating act. The first is East India Company Act, second is Act of British Parliament, then the act of first marked the first step toward centralization, and then the British government. Earlier it was British East India Company, then now the British government. The act of British Parliament passed is which is intended to improve the management of the East India Company rule in India. It marked the first step towards the parliamentary control over the company, then the centralization administration in India. Then British government first time recognized the company's function
in the political and administrative areas. Okay, in this way we sum up the intro part of the Regulating Act 1773. Now we will deal about why Regulating Act 1773 is passed. Why it is passed? There are the first thing, East India Company have several financial crises, so they asked a loan of £1 million from the British government in 1772. Then this is the first reason why it is passed. Then the second reason is allegation of corruption and nepotism were rampant against companies official. कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उसके अगेंस्ट में बहुत सारे एलिगेशन ऑफ करप्शंस एंड नेपोटिज्म का जो धब्बा था वो लगा हुआ था, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास किए गए। थर्ड जो रीजन है वो टेरिबल फैमिन इन बंगाल वेयर ह्यूज पॉपुलेशन पेरिज्ड। भूख के कारण बंगाल में बहुत सारे जो पॉपुलेशन थे वो नष्ट हो गए, वो खत्म हो गए। देन dual form of administration instituted by Robert Clive was complex and drawing a lot of complaints. Why this complaint is taking place? Because according to this system, both power was with the company. The power is the farmer and the general population suffered due to which, and the power is what? Their improvement was neglected. Company was only concerned with maximizing the revenue. ठीक है, maximizing the revenue means improvement, और जो दोनों जो पावर थे उसी के पक्ष में थे। एक रिवेन्यू जनरेट करना और इंप्रूवमेंट के काम करना। आप रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो ऑल्सो इंश्योर your revenue is must expended or the used in the public welfare or improvement was, but in this government, in this company rule, the improvement was neglected. Now this is the dual form of administration instituted by Robert Clive was complex and drawing a lot of complaints. Lawlessness increased in Bengal. Next, defeat of the company against Mysore Hyder Ali in 1769. यह भी एक काउज था जो कि रेगुलेटिंग एक्ट पास किए गए थे कि कंपनी के अगेंस्ट, कंपनी जो थी वो मैसूर हैदर अली के साथ एक जो युद्ध हुआ था, एक जो छोटा सा हुआ था बैटल, उसमें वो बुरी तरह से डिफीट हो गए थे। दैट्स वाई कंपनी वांट टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी इन रेगुलेटिंग एक्ट 1773. So these are the some reasons. So in this way we conclude the why. Then we will further deal with the provisions of regulating act. The first provision is permitted the company to retain its territorial positions in India. आपको टेरिटोरियल पोजीशन और एक्सटेंड करना है, ये सबसे पहले कहा गया। गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि फर्स्ट थे वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है आपका जो परमिटेड था टेरिटोरियल बट साउथ टू डिमांड टू रेगुलेट द एक्टिविटीज एंड फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, इट डिड नॉट टेक ओवर द पावर कंप्लीटली, हेंस कॉल्ड द रेगुलेटिंग, हेंस कॉल्ड रेगुलेटिंग। इट डिड नॉट टेक ओवर द पावर कंप्लीटली, हेंस इट इज कॉल्ड रेगुलेटिंग। Next, Executive Council, which is under the Governor General of Bengal, which is consist of 4 members. Then Provincial Governor under the Governor General of Bengal, especially in the matter of
फॉरेन पॉलिसी, प्रोविंसेस गवर्नर लाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर स्टैब्लिश किए गए, जिसका काम था कि जो भी चीजें हो रही हैं, ठीक है, इंडिया में कंपनी का अफेयर्स, दैट इज रिपोर्टेड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द 4 ईयर टर्म, लिमिटेड टू 4 ईयर टर्म। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो टर्म था उसको 4 साल किया गया था। देन रिस्ट्रिक्टेड द कंपनी डिविडेंड टू ओनली 6%। अब जो कंपनी का जो लाभांश था, प्रॉफिट था, वो सिर्फ 6% ही था। रिफ्यूज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी टू गिफ्ट और ब्राइवरी फ्रॉम द नेटिव पॉपुलेशन एंड इंगेज इन द पर्सनल ट्रेड। Then the Supreme Court is established at the Fort William of Calcutta in 1774. It consists of 1 Chief Justice and 3 other judges. The Sir Elijah Impey is the first Chief Justice, and the jurisdiction was of Supreme Court is civil and criminal jurisdiction only over the British subject, not over the Indian natives. It is only over the British subject. These are some provisions. Okay. Again, we will sum up. The permitted the company to retain its territorial positions in India. Governor of Bengal is converted into the Governor General of Bengal. Executive Council is established, assisted with the 4 members. Then the provincial governor is also established, which foreign policy, which makes the foreign policy. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो काम था वो था उसके जो कंपनी के जितने भी अफेयर्स है उसको रिपोर्ट करना टू द गवर्नमेंट। इसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर स्टेब्लिश किए गए थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था वो प्रोविंशियल का था, फॉरेन पॉलिसी को देखना। फिर रेस्ट्रिक्टेड द कंपनी डिविडेंड 6%, उसको सिर्फ लाभांश देने की बात की गई। इसके बाद कंपनी के जो भी इंप्लॉयज हैं उसे ब्राइब और गिफ्ट लेने से मना किया गया। और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया इसी रूल के तहत किया गया। नेक्स्ट है हम लोग ड्रॉबैक की बात करें। इफ यू विल टॉक अबाउट द ड्रॉबैक्स, देयर आर द मेजरली 1 2 3 4 6 ड्रॉबैक्स। द फर्स्ट ड्रॉबैक इज गवर्नर जनरल हैड नो वीटो पावर। ड्रॉबैक्स क्या था कि गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो पावर नहीं था। डिड नॉट एड्रेस द कंसर्न ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हु वर पेइंग रेवेन्यू टू द कंपनी। डिड नॉट स्टॉप करप्शन अमॉन्ग द कंपनीज ऑफिशियल्स। ये पूरी तरह से फेल हो गया कंपनी के ऑफिशियल्स के करप्शन को रोकने में। देन सुप्रीम कोर्ट्स पावर वर नॉट वेल डिफाइंड। उसके जो सुप्रीम कोर्ट के जो पावर थे उसे वेल डिफाइंड नहीं किया गया था। सिर्फ बोल दिया गया था कि ये ब्रिटेन के जो भी अफेयर्स होंगे उसके रिलेटेड में ये सिर्फ जुरिडिक्शन देंगे, बाकी जो इंडिया के नेटिव पीपल के लिए ये नहीं है। इसके बाद द पार्लियामेंट्री कंट्रोल दैट वाज साउट डिमांडेड इन द एक्टिविटीज ऑफ कंपनीज प्रूव टू बी इनएफेक्टिव। जो कि मांगा गया था वहां के द्वारा, इसलिए इनएफेक्टिव हो गया वो प्रोसेस क्योंकि वहां पे कोई रीड करने वाला गवर्नर जनरल इन काउंसिल में कोई मैकेनिज्म नहीं थी। सो दिस आर सम ड्रॉबैक्स। तो सबसे पहले इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की अगर बात करें तो क्या था इसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट था 1972 में पास किया गया था। देन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन था, जिसका की इंटेंशन था कि वहां के ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल किया जाए। ये जो था फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द कंपनी एंड द centralized administration in India. Then the British government first time recognized the company affairs, which is the political and administrative. So in this way we will deal with the what में क्या आ गया? सबसे पहला आपका ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1772 के नाम से जाना जाता था। देन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसका कोई मेन काम था कंपनी के रूल को रेगुलेट करना। ये फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज द कंपनीज एक्टिविटीज, कंपनीज फंक्शन in the political and the administrative thing.
ओके। देन वाई में अगर हम लोग आए तो हम लोगों ने क्या क्या देखा। वाई में सबसे पहला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी सेवियर फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी, जो कि डेप्ट में जा रहा था 1 मिलियन पाउंड फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। इसके जो ऑफिसर्स थे उस पे बहुत सारे एलिगेशन लगे हुए थे करप्शन के और नेपोटिज्म के, ठीक है। बंगाल के लोग जो थे वो काफी भूखे मर रहे थे। इसके बाद डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, जो कि इस सिस्टम के अनुसार से द कंपनी हैड दीवानी राइट्स। इन रियलिटी बोथ पावर वर वेस्टेड विद द कंपनी, ठीक है। दीवानी राइट्स कंपनी के पास दीवानी। द फार्मर एंड द जनरल पॉपुलेशन सफर्ड। व्हाई दे आर सफर्ड? बिकॉज द इंप्रूवमेंट वाज नेग्लेक्टेड एंड द कंपनी वाज कंसर्न्ड विद मैक्सिमाइजिंग रिवेन्यू ओनली, इसलिए वो सफर कर रहा था। दीवानी राइट्स था इसके पास, मतलब टैक्स रिवेन्यू कलेक्शन की राइट थी इसके पास, लेकिन ऑब्टेन्ड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन बंगाल। दीवानी राइट्स जो कि ऑब्टेन्ड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन बंगाल, बैटल ऑफ बक्सर इन बंगाल। इन रियलिटी बोथ पावर वर वेस्टेड विद द कंपनीज, ठीक है। और फिर क्या था कुछ राइट्स में। द नवाब हैड निजामत राइट्स, जुडिशियल एंड पॉलिसिंग राइट्स। द नवाब हैड, अकॉर्डिंग टू दिस, द नवाब हैड निजामत राइट्स, जुडिशियल एंड पॉलिसिंग राइट्स, पुलिसिंग राइट्स, निजामत राइट्स secured from the Mughal emperor. In reality both power are vested with the company, ठीक है। कौन कौन सा पावर? एक निजामत राइट्स और एक आपका कंपनी हैड दीवानी राइट्स। निजामत राइट क्या था? जुडिशियल एंड पॉलिसी राइट था, और कंपनी राइट में क्या था कि दीवानी राइट्स था। ये डुअल सिस्टम, डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन instituted by the Robert Clive was complex and drawing a lot of complaints. Lawlessness increased in Bengal and the defeat of the company against the Mysore battle, that is with the Hyder Ali in 1769, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई थी वाई में। इसके बाद प्रोविजन की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी को रिटेन किया, कहा गया कि आप रिटेन कीजिए टेरिटोरियल पोजीशन को इंडिया के लिए। गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसे बहुत सारे पावर दिए गए थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स, ठीक है। इसके बाद प्रोविंशियल गवर्नर बनाए गए थे, जिसका मेन काम था फॉरेन पॉलिसी को हैंडल आउट करना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए गए थे, जिसका मेन काम था जो भी कंपनी के अफेयर्स हो रहे हैं उसके जो रिपोर्ट्स है उसको सेंड करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इसके बाद कंपनी के जो डिविडेंड थे उसको 6% तक ही रखा गया था। कंपनी के एम्प्लॉयज को ये कहा गया था कि आप ब्राइब या गिफ्ट ना लें। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था फोर्ट विलियम कोलकाता में, जिसका जुरिडिक्शन जो था वो सिर्फ ब्रिटिश पे था, इंडियन के नेटिव के लिए वो नहीं था। जो पहला जो चीफ जस्टिस, इसमें जो एक चीफ जस्टिस था और 3 जो अदर जजेस थे। जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो सर इलिजाह इम्पे थे, ठीक है। ये इतना आ गया प्रोविजंस में। इसके बाद हम लोग आगे ड्रॉबैक्स की अगर हम लोग बात करें तो गवर्नर जनरल हैड नो वीटो पावर, डिड नॉट एड्रेस द कंसर्न ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हु आर पेइंग द रेवेन्यू टू द कंपनी, डू नॉट स्टॉप करप्शन अगेंस्ट द कंपनी ऑफिशियल्स, एंड सुप्रीम कोर्ट, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट वेल डिफाइंड। The parliament control that was sought in activities of company proved to be ineffective because state in governor general in council में report को sent कर, no mechanism to study the report sent by the governor general in council। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थे उसके थ्रू जो भी रिपोर्ट भेजे जाते थे उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में पढ़ने वाला कोई नहीं था या मैकेनिज्म नहीं डेवलप किए गए थे, इसलिए ये ड्रॉबैक्स थे इसके, इसलिए ये फेल्ड कर गया था। और इसी वजह से नेक्स्ट पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था 1784 में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 1784 की बात करें तो इसका हम लोगों को बैकग्राउंड जानना है, फिर प्रोविजंस जानने हैं, फिर ड्रॉबैक्स जानने हैं।
प्रोविजंस की अगर हम लोग बैकग्राउंड देख लें तो कॉल्ड द फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 passed by the British Parliament lead to dual control of British possession in India. The act is named after continued in effect until 1858. 1858 तक ये रहा था, 1858 तक इसको कंटिन्यू किया गया था ब्रिटिश इंडिया एक्ट को। सबसे पहला बैकग्राउंड में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि इसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी कहा जाता है। इसके बाद ये जो एक्ट पास किए गए थे, पास्ड बाय द ब्रिटिश टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, नेक्स्ट लीड टू डुअल कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द कंपनी, फाइनल अथॉरिटी और द सुप्रीम कंट्रोल। दिस एक्ट इज नेम्ड आफ्टर विलियम पिट्स यंगर, Britain's PM when the act was passed, continued in effect until 1858, continued in effect until 1858। बैकग्राउंड में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 की हम लोग बात करते हैं। passed by the British Parliament to rectify the defects of regulating act of 1773, lead to a dual control of British possession in India by the British government and the company, final authority and the supreme control। The act is named after the William Pitts the Younger, which is the Britain Prime Minister when the act was passed, and continued in effect until 1858। This is the background। तो सबसे पहला अगर इसको हम लोग सम अप करें तो ऑल्सो इसे कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू पास किए गए थे, जो कि 1773 में रेगुलेटरी एक्ट पास किए थे। उसके जो भी ड्रॉबैक्स थे उसे रेक्टिफाई करने के लिए लाया गया था। इसका जो मेन कंट्रोल था, लीड टू डुअल कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द कंपनी। तो उसमें ब्रिटिश कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों में जो सबसे सुप्रीम माना जाता था, फाइनल अथॉरिटी, उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को माना जाता था। फिर इसका जो नाम पड़ा था वो विलियम पिट्स द यंगर, जो कि ब्रिटेन के उस समय के पीएम थे, उसके नाम पर पड़ा गया और फिर वो कंटिन्यूड इफेक्ट इन 1858। तो ये कुछ कुछ बैकग्राउंड थे जिसे आप समझे। इसके बाद हम लोग प्रोविजंस की बात करें तो सबसे पहले डिवाइडेड फंक्शन इनटू कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। दो फंक्शन में इसने 18 में डिवाइड किया, कॉमर्शियल और पॉलिटिकल। मैंडेट दैट ऑल सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स डिस्क्लोज देयर प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड द ब्रिटेन, ये मैंडेट किया गया। डिवाइडेड टू फंक्शंस के दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। कॉमर्शियल को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दे दिया गया था और पॉलिटिकल को बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया था। रिप्रेजेंट द कंपनी, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो कंपनी को रिप्रेजेंट करते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे वो क्या रिप्रेजेंट करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और ये इसका काम क्या था, इसका कंट्रोल करना था, सिविल मिलिट्री एंड रेवेन्यू चीजों को कंट्रोल करना था। इसके बाद और भी से इसमें जो कंसिस्ट होते थे ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 2 कैबिनेट मिनिस्टर एंड 6 कमिश्नर, 2 कैबिनेट मिनिस्टर एंड 6 कमिश्नर्स ये होते थे, इसमें इंक्लूड कंसिस्ट होते थे इसमें। तो इसमें क्या था, पहला ब्रिटिश के फंक्शन को डिवाइड किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शन को डिवाइड किया गया था दो पार्ट में, कॉमर्शियल और पॉलिटिकल पार्ट में। अंडर द कॉमर्शियल को डाल दिया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और पॉलिटिकल को डाल दिया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसका जो मेन काम था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना था। इसके बाद इसमें सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू को कंट्रोल आउट करना था। इसके बाद इस कंसिस्ट 2 कैबिनेट मिनिस्टर एंड 6 कमिश्नर कंसिस्ट होती थी इसमें, ठीक है, ये चीजें थी इसमें। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो ऑल द सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स को ये कहा गया था कि आप डिस्क्लोज कीजिए प्रॉपर्टी के डिटेल्स को, जो कि आपका इंडिया में और ब्रिटेन में है। और एक प्रोविजन था एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो स्ट्रेंथ को था उसको कम कर दिया गया, रिड्यूस टू 3 मेंबर, पहले 4 मेंबर था। 1 ऑफ द 3 द कमांडर इन चीफ ऑफ द गवर्नर ऑफ, और उसी 3 में से एक कमांडर इन चीफ था ब्रिटिश क्राउन के आर्मी में से। इसके बाद प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे
को सबऑर्डिनेट कर दिया गया था अंडर द बंगाल प्रेसिडेंसी, एंड कलकत्ता बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया. Next, the Bengal was given more power in all the matters concerned with diplomacy, war and revenues. अब आते हैं हम लोग इसके कुछ ड्रॉबैक्स पे. पिट्स का ड्रॉबैक, गवर्नर जनरल हैज टू सर्व 2 मास्टर्स. गवर्नर जनरल जो था, नो क्लियर बाउंड्रीज बिटवीन किसके बीच. बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एलिज्ड ऑफ फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म. बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है. 2 मास्टर ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश क्राउन. नो क्लियर बाउंड्रीज बिटवीन द पावर ऑफ कंपनी एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट. Between the responsibilities of Governor General had to take on the spot decision exercising this discretion. Board of Control, Court of Directors. Board of Control was alleged of the favoritism. ठीक है, तो ये सारे एक्ट स्टेब्लिश किए गए थे. चार्टर एक्ट 1813, क्या आप लोग नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द चार्टर एक्ट 1813. इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड एंड फीचर्स. इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो चार्टर एक्ट 1813 में जो भी पास आउट किए गए थे, वो सबसे पहला था रिन्यूड द ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर को रिन्यू करना था. ठीक है, रिन्यूड द ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर फॉर अनदर 20 ईयर्स. फॉर अनदर 20 ईयर्स को के लिए रिन्यू करना था. इसके बाद ऑल्सो कॉल्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813. ईस्ट इंडिया कंपनी 1813. नेक्स्ट, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी. डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज फर्स्ट टाइम. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत लाया गया. नेक्स्ट है इसकी बैकग्राउंड. कंपनी अपोजेस दिस आर्ग्यूमेंट. चार्टर एक्ट 1830 में जो भी लाया गया था, इंट्रोडक्शन तो हम लोगों ने समझ लिया. अब इसका बैकग्राउंड क्या था कि इसमें प्रोहिबिट किया गया थे द इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड. ब्रिटिश का जो भी गुड्स था टू फ्रेंच एलाइज इन यूरोप. प्रोहिबिटेड द इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू फ्रेंच एलाइज इन यूरोप. इंपोर्ट, एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट क्या होता है कि खुद के एक पर्टिकुलर डोमिनियन में बना हुआ चीजों को अपने देश में लाना, दैट इज द इंपोर्ट. और उसको बाहर भेजना, दैट इज द एक्सपोर्ट. प्रोहिबिट द इंपोर्ट मतलब ला नहीं सकते थे ब्रिटिश गुड्स टू द फ्रेंच एलिज इन यूरोप. मना कर दिया गया था इसमें. दो बर्लिन डिक्री ऑफ 1806 एंड द मिलान डिक्री ऑफ 1807. नेक्स्ट, नेपोलियन बोनापार्ट कंटिनेंटल सिस्टम इन यूरोप. एडम स्मिथ लेज़-फेयर फ्री ट्रेड पॉलिसी बिकेम पॉपुलर इन ब्रिटेन. ओके, ब्रिटिश traders and merchants suffer. They demanded permission to trade in Asia and dissolve the monopoly of East India Company, but the company opposes this argument. Okay, company opposes. The controversy was later resolved by allowing all the British merchants to trade with India under a strict license system. ठीक है, under a strict dissolve the monopoly of East India Company. डिसॉल्व कर दिया गया था, हटा दिया गया था. परमिशन टू ट्रेड इन एशिया. दे डिमांडेड परमिशन टू ट्रेड इन होल एशिया एंड डिसॉल्व द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, और वहां जो आपके अदर थे फ्रेंच के, उसे भी ट्रेड करने का मौका मिला. नेक्स्ट, एडम स्मिथ लेजर फ्री ट्रेड पॉलिसी बिकम पॉपुलर इन ब्रिटेन. सपोर्टर आर्ग्यूड
the ending of company's monopoly in the East, help in the growth of British commerce and industries. But the company opposes this argument. Why? Because the controversy was later resolved by allowing all the British merchants to trade with India under a stricter license system. नेक्स्ट, अब हम चलते हैं फीचर्स इसके अगर हम लोग जाने तो सबसे पहला जो फीचर्स था, asserted the crown sovereignty over the British possessions in India. क्राउन की जो सोवरेनिटी है उससे सुप्रीम माना गया. कंपनी ट्रेड पॉलिसी इन ईस्ट, ट्रेड विथ इंडिया फॉर ऑल कम्युनिटीज एक्सेप्ट टी. ended, company's trade monopoly in east ended. Why it is ended? except tea trade and trade with China. इसे छोड़ के बाकी सब जगह कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को हटा दिया गया, एंड कर दिया गया. ट्रेड विथ इंडिया फॉर ऑल कमोडिटीज एक्सेप्ट टी ओपन टू ऑल ब्रिटिश पीपल, है ना. अब पहले क्या था कि सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग करते थे. अब ब्रिटिश के जो भी पीपल हैं वो सब यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे. मोनोपोली यहाँ पे हटाई गई चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू. परमिशन टू क्रिश्चियन मिशनरीज. अब यहाँ पे और एक चीज को परमिशन दिया गया था मिशनरीज स्टैब्लिश करने के लिए. टू गो टू इंडिया, आप भारत जाइए और वहां पे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कीजिए. ठीक है, आप क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कीजिए. आप बिशप फॉर द ब्रिटिश इंडिया, है ना, हेड क्वार्टर एट द कैलकाटा. और उसी के नाम पे एक बिशप पब्लिक स्कूल अभी है, चल रहा है इंडिया में, दैट इज द क्रिश्चियनिटी इंस्टीट्यूशन, प्रमोट द क्रिश्चियनिटी. उसका मेन जो पर्पस था, खोला गया था टू प्रमोट द क्रिश्चियनिटी, और अभी पढ़ाने में भी ये लोग जाते हैं अच्छे. क्लियरली डिफाइंड constitutional positions of British territory in India. ठीक है, clearly defined constitutional positions. Company should keep territorial and commercial accounts separate. Company should keep territorial and commercial accounts separate. टेरिटोरियल और कमर्शियल अकाउंट को सेपरेट कर दिया गया था चार्टर एक्ट 1813 में. नेक्स्ट है ब्रिटिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल डिफाइंड एंड इनलार्ज्ड. बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, जो कि क्राउन का था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, उसे वेल डिफाइंड किया गया और उसे इनलार्ज्ड किया गया और उसको और बढ़ाया गया, उसके मेंबर्स को बढ़ाया गया. देन कंपनीज डेप्ट रिड्यूस. कंपनी के जो डेप्ट थे वो रिड्यूस. इट्स डिविडेंड वाज फिक्स्ड एट 10.5% पर एनम. नेक्स्ट है empowered the local government, impose taxes on a person subject to Supreme Court jurisdiction, punish those who did not pay. empowered local government, लोकल गवर्नमेंट को empowered कर दिया गया था कि आप जो एक पर्सनल टैक्स लेने के लिए आप फ्री हैं, और उसे सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में डाल दिया गया था, और जो नहीं देते थे उसको पनिश करने का भी उसमें पावर दे दिया गया था. गेव मोर पावर फॉर द कोर्ट इन इंडिया ओवर यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट. पहले क्या था कि पावर सुप्रीम कोर्ट के पास कम थे, इसके बाद ज्यादा पावर दिए गए यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. प्रोवाइडेड फॉर द फाइनेंशियल ग्रांट टुवर्ड्स revival of Indian literature and the promotion of science. Company should invest 1 lakh every year. Company should invest 1 lakh on the education of Indian. तो यहाँ पे आप पहले बार फीचर्स देख सकते हैं, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया. तो इसके इतने सारे फीचर्स थे. All these all are the features. Introduction, background, features.
इंट्रोडक्शन में एक बार फिर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं इसे। इंट्रोडक्शन में क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर एक्ट को 20 इयर्स के लिए लागू किया गया, रिन्यूड किया गया। ऑल्सो कॉल्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 के नाम से भी जाना गया। डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज। इसके बाद ये 3 चीजें थी। सबसे पहला कि 20 इयर्स के लिए इसे बढ़ाया गया था, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोला जाता है। इसके बाद था कि फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, इसे भी डिफाइन किया गया था। फिर बैकग्राउंड की अगर हम लोग बात करें, इफ यू विल टॉक अबाउट द बैकग्राउंड, प्रोवाइड द इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड टू फ्रेंच एलाइज इन यूरोप। प्रोवाइड द इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू फ्रेंच एलाइज इन यूरोप। ब्रिटिश गुड्स को जो फ्रेंच एलाइज में इंपोर्ट किया जाता था, प्रोवाइड द इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू फ्रेंच एलाइज इन यूरोप। in Europe through Berlin Decree of 1806 and Milan Decree of Decree. Napoleon Bonaparte continued the system this and the rest. Adam Smith free trade policy become popular in Britain, supported the argued and ended the monopoly in East. मोनोपोली को भी इसी में खत्म किया गया था। इसके बाद फीचर्स में बहुत सारे फीचर्स थे। सबसे पहला क्राउन सोवरेंटी ओवर द ब्रिटिश पोजीशन, कंपनी स्टेट मोनोपोली इन इंडस्ट्रीज, इंडेड परमिशन टू क्रिश्चियन मिशनरीज एस्टैब्लिश किया गया था। इसके बाद कुछ टेरिटोरियल कमर्शियल अकाउंट सेपरेट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को रिड्यूस किया गया था, डिफाइन किया गया था, इनलार्ज किया गया था, कंपनीज डेब्ट को रिड्यूस किया गया था, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर्ड किया गया था। ठीक है, gave more power for the court in India, provide for financial grant towards this, and company should invest 1 lakh per year on the education of India. This is the foundation of modern education in India. तो modern education in India यहीं से established हुआ था। तो ये 2-3 चीजें हमें जाननी थी इसमें, चार्टर एक्ट 1813 में। ठीक है, अब हम लोग चार्टर एक्ट 1833 की बात कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग चार्टर एक्ट 1830 का जिक्र कर रहे हैं। इसमें हमें 3 मेजर हेडिंग्स के बारे में जानना है। पहला प्रोविजंस, ठीक है, और दूसरा लेगेसी, और कुछ अगर ड्रॉबैक्स रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 ही प्रोविजंस लेके चलेंगे हम। सबसे पहला अगर हम लोग प्रोविजंस की बात करें तो लीगलाइज्ड द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, देन द कंपनी स्टिल पॉसेस द इंडियन टेरिटरीज, permitted the English to settle freely in India, but it was held in trust for His Majesty. Next, company commercial activities completely closed down, made into an administrative body for the British Indian position, made it into administrative body. Trade links with China were also closed down. Then the centralization of administration by Governor General of Bengal was redesignated as the Governor General of India, and the Lord William Bentinck is the first Governor General of India. Country's administration was unified under the control of Governor General of India. Governor of Bombay and Madras lost their legislative powers. Next, Governor General of India has the legislative power over entire British India, authority to amend, repeal and alter any laws pertaining to all the people and places, whether British, foreign or Indian native, in the British Indian territories. Governor General of India controlled civil and military affairs of the company. Governor General Council 4 members, 4-member limited power only. For the first time, Governor General government was called the Government of India. Governor General Council was called Indian Council. Governor General Council was called the Indian Council. Next, Indian Law Commission. Any law made in India to be put before the British Parliament was to be called Act after the approval. Indian Law Commission established under this Act. First Law Commission
given by the Lord Macaulay chairman to codify all the Indian laws. Next, split in Bengal presidency into the presidencies of Agra and the Fort William, which is never come into effect. India in government services, first act permitted India in the country's administration. Basis of employment to government services, merit only, not birth control, religion and races. Next, slavery provided for the mitigation of slavery existing in India at the time. British Parliament abolished slavery in Britain and all its possession in 1833. A tilt toward Christianity allowed for having 3 bishops in India. Sought to regulate establishment of Christian institution in India. Why bishop? Because the number of British residents in India was increasing. Next, legacy. The final step in centralization of Indian administration. East India Company commercial activities ended, making it into Governor's Crown's trustee in administrating India. Codification of law under Macaulay Committee. Provision for Indian in government services. ठीक है, वही जो था सिविल सर्विसेज एक्ट लाया गया था थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ द 1833. नेक्स्ट वी डील विद द regulating act, not but charter act 1853. In this we will know about why this act come into effect. The first is the undue expenditure and unnecessary delay in dispatches business due to the presence of court of directors and board of control. Next है territorial and political changes in India after the act of 1833 due to annexation of Sindh, Punjab and number of other Indian states. Next, concern about role of Government General of India as Governor of Bengal. Why? Because it leads to the certain decision in favor of Bengal. Next, demand for decentralization of power. Demand giving the Indians here a management of their own affairs. Legacy. Last charter indicated clearly rule of the company was going to end. ये last charter था. Not mentioned the time period for renewal. Not granted commercial privilege for a specific period of time. Legacy. Landmark in the evolution of constitution, making the beginning of the parliamentary system in India. Next, सबसे पहला हूँ था, इसके बाद लेगेसीज थी, फिर हूँ पास ड्यूरिंग द लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पास दिस. एंड द लास्ट इज प्रोविजंस. कंपनी प्रोविजंस इज renewed the powers allowed to retain territories and revenue of Indian territory in trust for the crown. Governor General Council divided the function legislative and executive. Legislative council established किया गया था from 6 to 12 member now, 12 member. Then the become Indian Central Legislative Council, acted as mini parliament. ये मिनी पार्लियामेंट का काम करता था. Same procedures as the British Parliament. Member could ask the question and discuss the policies of the Executive Council. Legislative business conduct in public and discussion was oral. Bills were referred to the select committee. Bills were committed to select committee rather than to any individual member. Next है executive. Executive में क्या है? Executive Council. Executive Council में right to veto a bill passed by the Legislative Council. Executive Council law member become a full member, representative from the provinces. Civil servant not less than 10 years standing, represented from the provinces. Law member, fourth member, become a full member with the right to vote, law member. And the vice president, Governor General could nominate him. Governor General assent required for all legislative proposals. Next है power with respect to presidency. Appointment of separate governor for the Bengal presidency. Next, court of director could
create a new presidency or provinces, lead to creation of Sindh, Punjab, Assam, Burma and central provinces. Why create a new presidencies? Because difficulties faced in administrating huge Indian territories of Britain, alter the boundaries of existing states. Then 1859, a lieutenant governor was appointed for the Punjab, appoint a lieutenant governor for these provinces. Next, salary of the member of the board of control, its secretary and other officers would be fixed by the British government, paid by the company. Next, a court of directors, 6 nominated by the British crown, number reduced from 24 to 18, remove its right of patronage to appointment in civil services, remove its right of patronage, open competition in civil services based on the recommendation of Macaulay Committee 1854, recommended the only fittest to be selected for the ICS, remove the court of director right of patronage to appointment in civil services, appointment to be done only by competition based on merit, open to all ICS was made available to Indian as well. Next, Law Commission to examine draft and report of Law Commission in India ceased to exist by then. Next, I empowered British Crown to appoint a Law Commission in England. Empowered British Crown to appoint a Law Commission in England, and the Law Commission may have law member, now made a full member of the Governor General Executive Council. Next, criticism, exclusion of the Indian from the Legislative Council, exclusion of Indian from the Legislative Council. Company had no right to govern India for another 20 years. Home government took its place, particularly after Spy Mutiny in 1857. This is the company rules. Of the Charter Act. So this is the thing. ये लेगेसी उधर की थी, ये लेगेसी इसकी है. Why legacy? Passed during the Lord Dalhousie. Provinces, power with respect to presidencies, salary of member of the fixed by the salary of the member of the board of controls and its secretary other officer would be fixed by the British government and paid by the company. Court of directors, open competition in civil services, law commission is established, criticism, exclusion of the Indian from this, and the company had no right to government took, particularly after the Sepoy mutiny, remove the court of directors also. In this way we conclude the company rule. Now